A very good evening to one and all. We'll start the session in next few minutes. Let's see. We are waiting for more participants to join in. A good evening, everyone. Good evening, everyone. Okay, a very good evening to one and all, and let's start this session. And I hope many of you were there in our yesterday's session as well. And I hope that you have started working on the things which we have discussed yesterday. The idea to keep this session at this point of time when it is 6 p.m. So generally we don't keep the sessions at 6 because the reason was very simple that you might have certain other commitments, be it tuition classes, to school or colleges, or let's say you want to have your leisure time as well. But the idea was not to disturb your basic routine, and that's what I thought. I mean, the classes routine specifically. And then we thought, let's do it at 6 p.m. So it's okay, right? So start karte hum log. So again, the agenda of this particular session. Let me start with the agenda, right? कि हम लोग आज इस सेशन के ऊपर कहाँ बात कर रहे हैं. Now, before even moving to the agenda, मैं पहले बात करूंगा why this session. I believe that every time when you listen to whatever I'm saying,
you should know the logic that हम लोग ये सेशन क्यों बात कर रहे हैं, why this session is all about. So हम लोग उस पे बात करेंगे कि ये सेशन देने के पीछे रीजन क्या था, और उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा कि हम इस सेशन के अंदर क्या क्या कवर करेंगे. That's what we'll be talking about, right? I'll finish this session in next 35 minutes maximum, and उसके बाद if you have any questions, any concern, जो मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के रह जाएंगे, but still अगर फिर भी कुछ questions, कुछ concern हो, feel free to discuss. So the point number one is why this session, and it's not a brainer. It's not a brainer, to be honest with you, कि ये session क्यों किया जा रहा है. The reason is very simple, to sensitize all of you to give mocks. आप लोग mocks नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं, मैंने कई बार देखा है, there is still that seriousness, there is a lack of seriousness which is there while giving the mock. I don't know why, what is the objective here. So this was the two reasons when I thought okay, some of the students are asking for mock solution, and then there are majority who are not even appearing for mock. Let's find out कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये mocks क्यों दिए जाते हैं, क्या reason है, rather than we are talking about only analysis. उस analysis से बढ़कर भी बहुत कुछ है, and that's where I thought let's do this session. So I welcome you all on in this particular session, which is all about mocks from e-coaching side, right? So let's start. So I'll start with an agenda. So the first thing is, what is a mock? Sir, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हमें नहीं पता mock क्या है? We'll talk about it. So what exactly this mock is all about? Why mocks? Mocks किस लिए करें? So क्या है mock? Mock किस लिए करें? और सर mock के लिए क्या process होता है? Right? What exactly is the process? Everyone is talking about mock में ये करो, mock में वो करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, कई बार मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि हम लोग लेट्स से एक दिन के अंदर, यस लिटरली टेलिंग यू, एक दिन के अंदर सर 3 मॉक दे दिए. टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो लोग ये काम कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू द अप्रोच इज वेरी रॉन्ग. इससे वो कोई फायदा नहीं होने वाला है. इट इज जस्ट अ इंटरनल सेटिस्फैक्शन कि मैंने दिन के अंदर 3 मॉक दे दिए. सो प्रोसेस टू बी फॉलोड के अंदर मैंने पहली चीज जो लिखी हुई है कि मैं प्री वर्क क्या क्या करूंगा, उसके बाद मैंने दूसरा लिखा है कि मैं मॉक के वक्त क्या करूंगा, और तीसरी चीज मैं आपसे बात करूंगा ड्यूरिंग पोस्ट मॉक. राइट? सो मॉक क्या है, मॉक क्यों देना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा, और फिर मैं आपसे ये भी बात करूंगा प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मॉक. हम जब मॉक्स बना रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच वी आर फॉलोइंग अप सो दैट इट मेक्स अ सेंस टू यू गाइस that why giving each and every mock is important. So that's what the agenda of the today's session is all about. So start करते हैं. So आप लोगों से पूछना चाहूंगा, पहले फटाफट चैट बॉक्स के आंसर दीजिएगा. What exactly is mock? Quickly, mock क्या है? क्या है ये mock? फटाफट चैट बॉक्स, ये mock क्या है? Everyone, quickly, what exactly is this mock? A replica of final exam to know where we stand. Very good, Vaishnavi. To know your level, right? तुम्हारा level क्या है, right? Whether you are Ram, Sham or Ghanshyam, that is a mock. Okay. Anyone else? जो लोग आराम से आके बैठ गए हैं, कोई बताएगा, कोई जवाब देगा. What exactly is a mock? So what is mock? Mock is multiple option checking test. राइट? हम लोग उसको बहुत तरीके से सोचते हैं, प्रैक्टिस कर लेना, ये कर लेना. सो इट इज बेसिकली क्या है? यस, सो इट्स मल्टीपल ऑप्शन चेकिंग टेस्ट. मतलब आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए. इट्स मल्टीपल ऑप्शन चेकिंग टेस्ट, राइट? सो बिफोर गोइंग फॉर योर डी डे, you are provided with multiple options. Multiple options for what? Multiple options for checking yourself. Now, यहां से मेरा पहला क्वेश्चन अराइज होता है, और आप लोग इस चीज को आराम से सुनिएगा. इट इज मल्टीपल ऑप्शन फॉर चेकिंग टेस्ट. और अगर आप अपने आप को चेक ही नहीं कर रहे हैं तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है. आई रिपीट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, अगर आप अपने आप को मॉक देने के बाद चेक नहीं कर रहे हैं तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं है. सो मेरा पहला आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट रहेगा दैट डू फोकस ऑन चेकिंग योरसेल्फ आफ्टर द मॉक. तभी कुछ फायदा है, अदरवाइज नहीं रहेगा. दैट इज व्हाट मॉक इज ऑल अबाउट. सो आई एम सेइंग चेक योरसेल्फ. व्हाई मॉक? ये मॉक क्यों है? राइट? आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूं, बट जिन लोगों को भी शायद
एक चीज भी मैं अगर इस सेशन से 10 लोगों तक पहुंचा सकूं या एक स्टूडेंट तक भी पहुंचा सकूं, आई थिंक माई जॉब इज ओवर. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हिच मेजॉरिटी ऑफ यू राइटली पॉइंटेड आउट इज, सर मॉक इसलिए होता है टू एसेस योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. तुम्हारा इस टाइम प्रिपरेशन क्या है उस लेवल को देखने के लिए. तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो रहा है, टू एसेस योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. मुझे अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखना है. कैसे देखोगे, आप कैसे देख पाओगे गाइस? अगेन मैं आपको बारी बारी एक चीज यहाँ पर फोकस करूंगा जो मैंने यहाँ पर भी किया. यहाँ पर मैंने क्या बोला, चेक करो अपने आप को, राइट. यहाँ वो अगेन बोल रहा हूँ, एसेस योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. और एसेस कैसे करोगे अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन? स्कोर देख के नहीं, एनालिसिस करके. मेरे एनालिसिस में क्या क्या आ रहा है, मेरे एनालिसिस के अंदर पॉजिटिव क्या है, मेरे एनालिसिस के अंदर नेगेटिव क्या है, मेरे एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लमेटिक एरियाज कौन से हैं, मेरे एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथनिंग एरिया कौन से हैं. ये सब चीजें आपको बताएंगी कौन, जब आप मॉक का एनालिसिस करेंगे. अदरवाइज दिन के अंदर 3 मॉक देना कोई मतलब नहीं है. जब आप अपना एसएस लेवल करोगे, सो मान लो आपको पता लगा दैट लेट्स से आई एम वीक इन एक्स थिंग. लेट्स से आपको पता लगा मैं वीक हूं किसमें, एक्स और वाई में. तो जो कल मैं आपसे बात कर रहा था राम श्याम घनश्याम के ऊपर, राइट. सो ये जो मेकिंग स्ट्रेटेजीज होंगी ये तभी बना पाओगे जब आपको वीक एरियाज पता होंगे. आपको अपने वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया पता होंगे तभी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे. और मैं वापस बोल रहा हूं, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन. अपने कंसर्न को, अपनी वीकनेस को थोड़ा ऊपर लेके आना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी डन. अभी तो हो सकता है मॉक वाले दिन नहीं होगा, या फिर मॉक वाले दिन क्या मैं बोलूंगा, अक्टूबर के बाद छोड़ देना. आखिरी 27 दिन मत करना, बट अभी भी तुम्हारे पास 37 दिन बाकी है दोस्तों. यू हैव 37 to 40 odd days. आप अभी भी जो भी आपके एरियाज हैं, कंसर्न एरियाज हैं, उसके ऊपर अभी भी आप काम कर सकते हो. मैं फिर अगेन बोल रहा हूं, आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो इस तरीके से बनेगी. नहीं तो अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, अगर आपका ये पहला स्टेप ही चला गया, तो आप स्ट्रेटेजीज बना के करोगे भी क्या, उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो द पॉइंट नंबर 2 इज मेक योर स्ट्रेटेजी. अब पॉइंट इज स्ट्रेटेजी बना ली मैंने, सर एनालिसिस कर लिया, मैंने स्ट्रेटेजी बना ली. नाउ इज द टाइम. ये मॉक आपको किस लिए हेल्प करेगा, एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजीज. ये स्ट्रेटेजीज अगर आप सीधा जाके कैट एग्जाम के अंदर अप्लाई करोगे, तुम्हें पता नहीं कि ये सही है या गलत है. तो मेरे पास यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 2 मॉक के अंदर ये स्ट्रेटेजीज बना, जो मैंने स्ट्रेटेजीज बनाई है उसको एग्जीक्यूट करूंगा. हो सकता है ये स्ट्रेटेजीज भी आपके साथ काम ना करें. मैं तीसरे मॉक के अंदर कुछ और स्ट्रेटेजी करूंगा. मैं इसी मॉक की स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा के चलूंगा, और इन दोनों ने भी काम नहीं किया तो तब जाके मैं 5वें मॉक के अंदर स्ट्रेटेजी को चेंज करूंगा. So I have to change my strategy so that till the time when we go for my D-Day, this is दिन मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हूं कि मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगी. सो एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटेजी. मॉक इसके लिए जरूरी है. मॉक, अच्छा कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने तो कोर्स ही नहीं किया, हम तो घनश्याम कैटेगरी है सर जी, कुछ किया ही नहीं है. तो भाई साहब बी कंफर्टेबल विद द पेपर पैटर्न. आप लोग पेपर पैटर्न से कंफर्ट होना तो सीख जाओगे. पता तो लगेगा पहले VARC आता है, पता तो लगेगा बाद में LRDI आता है, और पता तो लगेगा लास्ट में QA आता है. वो समझना भी तो बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है. उसके बाद स्वॉट एनालिसिस. डू योर एनालिसिस. कल मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा था सर ये स्वॉट एनालिसिस क्या है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, राइट. अब MBA में जाएंगे चीजें बहुत पढ़ेंगे. सो नो योर स्ट्रेंथ. पहली चीज अपनी स्ट्रेंथ देखो, उसको गिरने नहीं देना है. उसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो अपने गाल पे तमाचा होना चाहिए. मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर स्ट्रेंथ में से क्वेश्चन गलत होना है तो मेरे गाल पे तमाचा होना चाहिए कि ये मेरे से गलत कैसे हो गया. तो स्ट्रेंथ इस तरीके से स्ट्रेंथ बनेगी, ऐसे नहीं कभी हो गया कभी नहीं हो गया. स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाना है, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना है, राइट. और क्वेश्चन गलत होने के अलावा क्वेश्चन सही समय पे पहचानना भी जरूरी है कि मैं उसमें फालतू टाइम व्यर्थ ना करूं. वीकनेस, मेरे को मेरी वीकनेस पहचाननी पड़ेगी, राइट. वीकनेस के बाद हम लोग बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा गाइस. आपके पूरे स्वॉट एनालिसिस के अंदर जब आप मॉक दे रहे हैं, मॉक के ऊपर प्लान कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी चीज, अनिवार्य चीज, अगला 40 दिन अगर आप खेल सकते हैं
सारे तीनों सेक्शन के ऊपर, तो अगला 40 दिन आप इन चीजों पे खेलिए, बिकॉज ये 40 दिन जो है, ये 40 दिन आपको जो है बिल्कुल मार्क्स दिला सकते हैं, या ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये इन 40 दिन के ऊपर अगर वर्कआउट कर ली गई तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब सर इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे पहचाने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये अपॉर्चुनिटीज क्या है? वर्बल के अंदर अगर मैं बात करूं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी पैरा समरी के रूप में। अगर आपका वीक है इसको स्ट्रॉन्ग करो। वर्बल के अंदर अगर मैं बात करूं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, लेट्स से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज 30% क्वेश्चन अभी भी फैक्ट बेस्ड आते हैं, राइट? स्टोन बेस्ड क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कभी भी। इफ आई टॉक अबाउट क्वांट्स फॉर दैट मैटर, if your geometry is weak, so geometry is a very big opportunity, you can expect 5 to 6 questions there, so you need to work on your opportunity. And last के अंदर आप क्या आ रहे हैं, थ्रेट, जो इसको आप छोड़ दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। अब थ्रेट को पहचानना इसलिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि थ्रेट को नजरअंदाज कर दिया जाए, थ्रेट को संभालना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो अगेन वो दंडनीय अपराध होगा, उसकी सजा मिलेगी, और वो सजा क्या होगी कि आपका कैट के अंदर एडमिशन नहीं होगा एट बी स्कूल्स के अंदर। गाइस, एम आई मेकिंग सेंस? यस और नो? क्विकली, ऑल द 20 odd students attending this session, quickly in the chat box, is it making sense to you guys? Quickly in the chat box, guys. What about quickly? Are you guys even there? Are you guys even there? वेरी गुड, ठीक है, गुड। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। हम लोग स्वॉट की बात कर रहे थे। नो इफ योर स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। मैंने स्ट्रेटेजी बना ली, मैंने एग्जीक्यूट कर ली, काम भी कर रही है या नहीं कर रही, जो चीज मैंने यहाँ बोला था वो भी मुझे देखना बहुत जरूरी है। अब एक सबसे बड़ी बात, सर मेरा स्कोर सेक्शनल टेस्ट में तो आ जाता है, मेरा स्कोर टॉपिक टेस्ट में तो आ जाता है, मॉक के अंदर स्कोर कम हो जाता है, यस और नो? होता है या नहीं होता है? सर ऐसे तो स्कोर आ जाता है, एक्यूरेसी आ जाती है, मॉक के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये मॉक्स देने पड़ेंगे, ये मॉक देना पड़ेगा। आपकी एंजाइटी रिड्यूस करती है, आपको एग्जाम प्रेशर का आभास कराती है। और लास्ट में प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जब ये सब चीजें कर लिया, इसके बेस पे मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को कई बार अच्छा नहीं लगता है, बट सोचिए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बेस पे आपको हेल्प मांगनी चाहिए। सर इसका मतलब क्या? मतलब ये तुम कैसे आते हो, पता है क्या क्वेश्चन लेके आते हो? सर मैथ्स नहीं हो रहा, अब यार मैं क्या करूंगा बताओ? कैन आई हेल्प यू गाइस? मैं हेल्प कर सकता हूँ, अभी मैथ्स नहीं हो रहा पे। आप मुझसे ये बोलिए, सर मेरा जियोमेट्री के अंदर सर सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट। आप वर्बल के अंदर क्या बोल रहे हैं, वीआरसी के अंदर, सर रीडिंग नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। आप मेरे से आके बोलो, सर रीडिंग के अंदर भी स्पेसिफिकली सर पता नहीं क्यों मुझे ये एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आई विल हेल्प यू आउट। सो वो हेल्प कैसे करोगे? ये हेल्प आप कैसे लेंगे? जब आप ये स्टेप्स कर चुके होंगे, और अगर आपने ये 7 स्टेप नहीं किए तो आप हेल्प नहीं मांगने आ सकेंगे। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया? अजय अगेन, अजय तुम्हारा जो क्वेश्चन है, सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बता अजय, एग्जाम प्रेशर से कोई लेना देना है इसका? मुझे बात बता, स्वॉट एनालिसिस से कुछ लेना देना होगा इसका? जितना सिलेबस किया है उतना कर दिया क्या वो बताओ? उतने टेस्ट दे दिए क्या वो बताओ? उतने तो दे दो मेरे भाई, उतने क्वेश्चंस कर लेना, वही बहुत है, ठीक है? और लास्ट के अंदर जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कम अप विद अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। हवा में बातें नहीं करना है, बेस्ड ऑन आपने 7 स्टेप उठा लिए, उसके बाद आप एक रियलिस्टिक टाइम टेबल के साथ आए कि मैं ये रियलिस्टिक फॉर्म में कर सकता हूं, और अगर मैंने ये रियलिस्टिक फॉर्म में किया तो मैं शायद ये जो है डेडलाइन पहुंच सकता हूं। दिस शुड बी द अप्रोच विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? सो ये सारी चीजें आपकी आएंगी वाई मॉक के अंदर। सो आप इन सब चीजों के लिए मॉक दें। प्रोसेस टू बी फॉलोड, मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए समझिएगा गाइस। इट्स वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई हार्ड चीज नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको 30-35 मिनट्स के अंदर सेशन खत्म कर दूंगा। आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन। मैं 8-1 मिनट और लूंगा मैक्सिमम बिफोर आई एंड द सेशन। फर्स्ट थिंग, प्री मॉक। मुझे प्री मॉक के अंदर क्या क्या करना है मॉक से पहले? सो फर्स्ट थिंग इज टेक इट विद अ प्रॉपर प्लानिंग। अब ये प्रॉपर प्लानिंग क्या है? मैं सैटरडे को जनरली वीडियो भेजता हूं, या अंकुर सर सैटरडे को वीडियो भेजते हैं। हम संडे को सोचते हैं कि कौन से स्लॉट पे देंगे,
और मैं अगेन बोलता हूं आपको, आपको कैसे देना चाहिए, आपको 2 मॉक देने चाहिए मॉर्निंग स्लॉट में, 2 मॉक देने चाहिए इवनिंग स्लॉट में, और 2 मॉक देने चाहिए आफ्टरनून स्लॉट में, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका एक्चुअल स्लॉट कौन सा आएगा। सो एक अपना स्लॉट देखिए। पॉइंट नंबर 2, आप ये तीनों स्लॉट के अंदर फुल एक्टिव कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए। प्लीज डोंट गिव मॉक इन द नाइट, डोंट गिव मॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज ये दोनों स्लॉट आपके नहीं आने वाले। आप क्या बोलते हैं, मेरा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा मॉर्निंग या नाइट में रहता है, बट मॉक आपका उस टाइम नहीं आएगा। सो अगर मॉक आपका नहीं आएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन का हम अचार डालेंगे नहीं। सो गो विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि मैं वर्बल के अंदर लेट्स से 10 क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं LRDI के अंदर 8 और मैं क्वांट्स के अंदर लेट्स से 10, वट एवर सेड एंड डन, पेपर जैसा भी आ जाए मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, राइट। सो दैट इज द गोल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो स्टार्ट ऑन टाइम, यही चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं। अपना शिद्दत से, तरीके से कम 30 मिनट पहले अपने आप को जो है कॉन्सेंट्रेशन के अंदर लाना शुरू कर दो। कम से कम 30 मिनट पहले चीजें हटा दो। ये नहीं कि मैं 1 मिनट पहले तक मोबाइल देख रहा हूं उसके बाद मैंने मॉक स्टार्ट कर दिया, नहीं होगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर यू नीड टू स्टार्ट गेटिंग रिड ऑफ ऑल द थिंग्स। डोंट टेक इट कैजुअली, राइट। ये 30 मिनट्स वाली चीज में शायद कई लोगों को हंसी आ रही होगी, ये कैसी बातें कर रहा है, बट ये लोग जो कर सकते हैं वही लोग फिर अच्छे स्कूल में भी जाएंगे। शायद आपको अच्छी हंसी आ रही होगी अभी, राइट। एंड गिव इट इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, राइट। भीड़ भाड़े वाले इलाके में नहीं। पता लगा यहाँ पर खाना बन रहा है और हम यहाँ पर मॉक दे रहे हैं, पता लगा यहाँ शोर शराब हो रहा है, यहाँ हम मॉक दे रहे हैं, मोबाइल पे ऐसे देख देख के कर लगे हुए हैं। दिस इज नॉट द अप्रोच। इससे बेटर है कि मॉक मत दो तो ज्यादा अच्छा है, राइट। डोंट, अपने फालतू दिल को तसल्ली देने का कोई मतलब नहीं है, दिल को ऑल इज वेल देने का, बोलने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन कुछ भी वेल नहीं होगा अगर आप ऐसे मॉक दे रहे हैं तो। ड्यूरिंग मॉक, सो ये था प्री मॉक की बात। अब हम बोल रहे हैं मॉक के वक्त क्या करना चाहिए। मॉक के वक्त कोई भी इधर उधर हैंकी पैंकी नहीं, एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटेजी। जो आपने स्ट्रेटेजी सोची है उसको एग्जीक्यूट करो। ये मत सोचो यार ये तो मॉक है बाद में देख लेंगे, बिकॉज यही आपका एग्जैक्टली किसी ने बोला ये रेप्लिका है, तो यही चीज आपको कैट के अंदर दिखने वाली है। और दूसरा, व्हेन आई एम सेइंग गिव प्रॉपर टाइम, परसों मेरे पास एक बच्चा था, मेरे सर वर्बल करने के बाद मन नहीं करा, बंद कर दिया। अबे मन नहीं करा, कैसी बातें कर रहे हैं। और उसको उसकी उम्मीद क्या है, उसकी उम्मीद है मेरे को 99 IIM अहमदाबाद चाहिए। अच्छा, दूसरा इंटेलिजेंट है, सर मैं तो कैटेगरी में, अरे भाई कैटेगरी में है तो भी मेहनत तो कर ले, राइट। सो गिव प्रॉपर टाइम, राइट। आप प्रॉपर टाइम दीजिए। पैसेज को जैसे मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर रफली 28 मिनट देने चाहिए, तो यहाँ पर 4 पैसेज के अंदर 7-7 मिनट दीजिए। आपको मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि 8 से 10 मिनट आपको देने हैं वर्बल एबिलिटी के अंदर। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू नोट डाउन। एंड पोस्ट मॉक, अब प्री मॉक हो गया, पोस्ट ड्यूरिंग मॉक हो गया, पोस्ट मॉक विदाउट एनालिसिस मॉक देना इज अ ब्लंडर। एनालिसिस कैसे करें, नाउ दिस इज द वन थिंग जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं। सारे लोग यहाँ ध्यान देंगे। अगर आपको मॉक का एनालिसिस नहीं करना आ रहा है, मैं बता देता हूं हाउ एनालिसिस नीड्स टू बी डन। सो मान लो, मैं अगेन बोल रहा हूं, आपके पास लेट्स से 66 क्वेश्चंस है, यू हैव 66 क्वेश्चंस। आपने इस 66 क्वेश्चन में से लेट्स से अटेम्प्ट किए हैं 36, यू हैव अटेम्प्टेड 36। उस 36 में से लेट्स से आपके 20 करेक्ट हुए हैं और आपके 16 इनकरेक्ट हुए हैं, राइट। और आपने 30 जो है नॉट अटेम्प्ट कर दिए। ये 3 कैटेगरी के अंदर आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं एनालिसिस, एनालिसिस आपका बहुत अच्छा खासा टाइम लेगा। पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं आप उनको देखते तक नहीं है। और मैं अगेन बोल रहा हूं, आप इन सब 20 क्वेश्चंस को वापस देखेंगे। क्या देखेंगे, इन 20 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे मॉक के अंदर और उसको मिलाएंगे आपके खुद के लॉजिक के साथ। अगर इन दोनों का मिलन हो रहा है इसका मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन आपका सही है, और अगर इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका ये तुक्का था, ये फ्लूक था, जो कि आपको अगले एग्जाम के अंदर या अगले मॉक के अंदर दिख जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्विकली इन द चैट बॉक्स प्लीज, इज इट क्लियर? क्विकली एवरीवन, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है लॉजिक? व्हाट नीड्स टू बी डन विद करेक्ट आंसर्स, करेक्ट ऑप्शंस? क्विकली इन द चैट बॉक्स गाइस, फटाफट फटाफट। आई वांट यस 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 एवरीवन एवरीवन। गुड। पॉइंट नंबर 2, आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं,
आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधा जाके सॉल्यूशन देख लेते हैं। नहीं, आपके जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं इनको आप रीसॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप रीसॉल्व करेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आपका 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट खा जाए। जब आप इन इनकरेक्ट क्वेश्चन को, लेट्स से आपके केस के अंदर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने लेट्स से 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं, जब आप इनको रीसॉल्व करेंगे उसमें से एटलीस्ट ऐसा मैं मानता हूं कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएंगे जो आपको जो है आसान थे, जहां आपने सिली मिस्टेक करी है। बट ये 10 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिसका आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपके कुछ जेन्युइन कंसर्न है, मतलब यहाँ पर मेरे कोई डाउट्स हैं जो कि मैंने आज तक कंप्लीट नहीं किए हैं। इन कंसर्न्स को आप एक सेपरेट नोटबुक में नोट करिए। देखो, ये लड़ाई ऐसे ही जीती जाएगी, आपको रिलीजियस रिग्रेस होना पड़ेगा। इसको आप सेपरेट नोटबुक में लिखिए और हर मॉक के अंदर ये नोटबुक भरती रहेगी, और कैट से 3 या 5 दिन पहले इस नोटबुक को देखना शुरू कर देना कि मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए थे, और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो या तो मैंने इन पे महारत हासिल कर दी है और या मैं इनको छोड़ दूंगा। गाइस, अभी तक हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं क्या? यस और नो, वो बताओ। अभी तक हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं? फटाफट यस और नो। गुड। अगर नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दें। राइट। थर्ड अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने करेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया। अब मैं थर्ड बात कर रहा हूं नॉट अटेम्प्टेड। अब नॉट अटेम्प्टेड के साथ भी आप ये करेंगे, आप इसको अगेन वापस रीसॉल्व करेंगे। अब जब आप इन 30 क्वेश्चन को रीसॉल्व करेंगे, अब आपको क्या पता लगेगा, 10 क्वेश्चन पे आप माथा पकड़ लेंगे। ये मैं क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूं भगवान, ये कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत सिटर था। तो ये 10 क्वेश्चन आपके यहां आ जाएंगे। और 20 क्वेश्चन जो आप रीसॉल्व करेंगे, तब आपको पता लगेगा यार ये तो जेन्युइनली मेरी औकात से बाहर है। सीरियसली मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ये जेन्युइनली मेरी औकात से बाहर है। तो इसका मतलब आपने 20 क्वेश्चन छोड़ के सही काम किया है। सो ये आपका एनालिसिस होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये एनालिसिस 1 घंटे में होगा? नहीं, ये एनालिसिस कम से कम आपका 4 से 5 घंटा खा लेगा। सो जो स्टूडेंट एक दिन के अंदर 3 मॉक दे रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो ब्लंडर है। आप 4 से 5 घंटे का मॉक का एनालिसिस कीजिए और 2 घंटा मॉक। 7 घंटे के बाद आपका ब्रेन बोल देना चाहिए खत्म, बस आज के लिए इतना बहुत है। दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस विच यू नीड टू डू। ठीक है, सो ये आपको करना पड़ेगा। नाउ आई क्विकली गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉक्स। हम लोग जो मॉक्स बना रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? सो द पॉइंट नंबर 1 इज, हम लोग पास्ट ईयर पेपर लेते हैं। पास्ट ईयर पेपर के एक पैसेज नहीं, पास्ट ईयर पेपर लेते हैं। इनका एनालिसिस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी विल टेक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग क्या बात करते हैं इसके अंदर कि भैया किस तरीके के टॉपिक्स, एक एक करके बात हैं, टॉपिक कवरेज। राइट, कि वर्बल में ये आरसी कौन से टॉपिक से ले रहे हैं, क्वांट्स के अंदर ये अरिथमेटिक से क्या वेटेज ले रहे हैं, ये अलजेब्रा से क्या वेटेज ले रहे हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का डिफिकल्ट वाला सेट दे रहे हैं, इजी वाला सेट दे रहे हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस व्हिच वी डू फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर। Then we also see the weightage as well. तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं that how good the mocks are और वो किस तरीके से बन रहे हैं, because it makes a sense to you guys. So topic coverage के हिसाब से मॉक बनते हैं, टॉपिक वेटेज के हिसाब से मॉक बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, क्या परसेंटाइल पे क्या क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। सो ये सारे बेस के मिला के हम लोग एनालिसिस करते हैं पास्ट ईयर पेपर का, एंड दैट्स हाउ मॉक इज गिवन टू यू। Point number 2, players in the market. Yes, I do give mock or of other players as well. Why? Because I can give you the variety. Because I can give you the variety, I can give you the best. So I do mocks, solve mocks of other players as well. Relevance level, मैंने कई बार देखा, I don't want to take any name, कई जगह मैंने देखा रेलिवेंस है ही नहीं वो पैसेज। राइट, सो द रेलिवेंस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी रेडी फॉर द चेंजेस। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, सर यहाँ तो 24 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 26 ही आ रहे हैं, आपने तो सर 30 दे दिए। कैट ने नहीं बोला है कि मैं 24 दूंगा या 26 दूंगा या 30 दूंगा। कैट ने सिर्फ मिनट भी नहीं बोला है अभी एज ऑफ नाउ, उन्होंने बोला 2 घंटे, और लेट्स से उन्होंने बोला 3 सेक्शन 2 घंटे। उन्होंने ये नहीं बोला है इस 2 घंटे के अंदर इक्वल टाइम डिवाइड होगा या इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, वो उसने नहीं बोला है। सो बी रेडी फॉर द चेंजेस गाइस। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डन। एंड एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलूंगा, इट शुड बी फॉर मासेस। जो हम मॉक बना रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूं उसको देख के नहीं बता रहे हैं,
इट शुड बी फॉर द मासेस। ये मॉक्स बनता है 2 लाख स्टूडेंट्स के लिए, तो उस ये जो कैट पेपर बनता है तो हमारा मॉक भी मासेस के लिए होना चाहिए। सो बिफोर मेकिंग द मॉक्स वी डू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। अब सोचिए, जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी तो आपको समझ में आएगा कि मॉक देना कितना जरूरी है और मॉक का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी डू एज फार एज मॉक इज कंसर्न। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मॉक का टाइम टेबल है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगेन बोल रहा हूँ, ये मॉक के बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा मॉक भी दे दूंगा। एंड कल किसी स्टूडेंट्स का आ रहा था कि आप क्या नॉन कैट एग्जाम्स के मॉक लेंगे, मैं उनके भी एग्जाम्स के मॉक दूंगा। सो आई वांट कि आने वाले दिनों के अंदर ये 6 मॉक जो हैं आप में से कोई भी बंदा नहीं छोड़ेगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, right? So with this I'm ending this particular session exactly at 6:31. अगर आप पे कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी कंसर्न है, feel free to ask in the chat box. Otherwise I am done with the session and I hope आपको सेशन लॉजिकल लगा होगा। आई होप मैं आपको कुछ बातें पहुंचा पाया हूँ, और आई होप एटलीस्ट इस सेशन से आपको 2 या 3 बातें ऐसी सुनने को मिली होंगी जो शायद आप अभी तक नहीं कर रहे थे। और अगर ऐसा है तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि एटलीस्ट माय पर्पस इज आल्सो ओवर एंड योर पर्पस इज आल्सो ओवर, राइट? So thank you everyone. Thanks for listening to this particular video. A quick feedback or a quick question. अगर आपके कुछ questions है, कुछ concern है, feel free to ask in the chat box, guys. Thank you. I am done with this session. Thanks a lot, guys. Thank you. Thank you, Vaishnavi, Priyanka. Thanks a lot, beta. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. If you have any questions, any concern, feel free to ask in the chat box. I am done. Thank you, Prasanna. Thanks a lot, dear. It's very much required. We'll keep giving you these kind of information, so don't worry at all. Thank you, everyone. Thank you, Rishabh. Thank you, thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Take care, guys. Thank you. Bye bye.